Welcome to our show. Today we are joined by Pakistan-based senior journalist Kuwar Khulhan Shahid. The reason we have invited our journalists from across the border is that Pakistan has been hit very hard by the natural calamity uh, due to the torrential rainfall the country is experiencing. About 1,000 people have already died. About 3.3 crore people have been affected. It is estimated that about half of the Pakistan has got drowned in this torrential rain. To understand the gravity of the situation, how the people are coping up with it, how the government is aiding in rescuing the people, we will talk to Kumar to understand the situation. Kumar, thanks a lot for coming to our show. Thank you so much for having me. Thank you. Kumar, let's try to first understand the situation. Please, आप बताइए कि what is the gravity of this situation? How largely the people have been affected by it? I think you've already highlighted some of the stats. Over 1,100 people have died. There are multiple times more that are injured, and around 33 million people, or 3.3 crores, as you highlighted, have been displaced. Now, these are just the numbers right now. You said over a third of the country is literally underwater right now. The issue is that these are the numbers as things stand. It is going to get worse. And it is not just the issue right now, because the focus right now is to ensure that the people who are most vulnerable are rescued. The long-term impacts of this, the future impact of this, is what is truly devastating, and that's the current situation right Uh, That is an important point that once the situation gets subsided, the rains get subsided, the real situation will emerge, how the state will come to the rescue, what has its impact. We will talk about that. But we will try to understand from you what are the major areas because we know it has been Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh, Balochistan areas. These have been largely very affected by the rains. So please tell us if the government was not prepared for these kind of rains, or they were caught offhand, or the preparations were not there entirely on the ground. now. I think it's a combination of all these factors. The most affected regions, as you mentioned, Sindh and Khyber Pakhtunkhwa. Now, the Khyber Pakhtunkhwa province is basically the northwestern part of Pakistan. So those areas where the slope is the steepest, those areas have been worse off because, of course, the flow of water and the magnitude of flooding, and that is obviously the most devastating in those parts. Uh, you could argue that they weren't prepared, but at the same time, we've been talking about the impacts of climate change. For example, in March this year, Pakistan had its hottest month of March for 61 years. So basically, the climate window was already brought back to March. For example, the temperature you would usually get in May, June, you got those in March. Similarly, the monsoon rains that you would normally get in July and August, by end of May or by June even, the monsoon window had opened, and you knew back then there were official warnings as well, and the devastation had begun. It's just that in recent weeks it has become a global news story because of uh, the current image that you see from Pakistan. But even in the short term, if you look at the short term window, this has been happening for the past 3 months. Devastation has been going on for the past 3 months, and the government was repeatedly told this is going to get worse. uh, Again, there is only so much that you can do when the flood has already hit you. So of course you can go back to how prepared the government, how prepared the state was in the long run. Even in the shortest term, once you knew that this is happening, once the monsoon rains hit in June, once you already knew that the water levels are increasing and this is going to spread further, there was absolutely no action taken. And the focus of the government, and as we've seen today, is well, is playing petty politics because, as you would know, different parties are ruling different parts of the country right now. There's a different federal government, there's a different government in KP, and now everyone is pointing out how this province is suffering because of that party and that province. So this is what is going on. Not only weren't they prepared, the lack of ownership right now is absolutely devastating in Pakistan. ऊपर आपने दो इशू उठाए एक तो है कि they were not prepared or they didn't appear to be serious what is going to happen. Secondly, know the issues of ownership. That is there are two or three parts. अब आपसे इसके ऊपर थोड़ा तफसील में मैं आपसे समझना चाहता हूँ. जैसे आपने अभी जिक्र किया कि कुछ अर्सा पहले इतनी हैवी रेन आई थी कराची और सिंध में काफी अर्सा पहले काफी ज्यादा रेन आई थी.
Was the government not serious at all, taking into account what is already happening? These are the danger signs. Was the government serious, not serious at all, या वो अपनी वो सियासत में ज्यादा मसरूफ थी? So it means the human factor was not taken into account. ह्यूमन फैक्टर वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। वो कराची या सिंध का ये, वो फिर अब सिंध की पॉलिटिक्स में आप चले जाए तो वो, क्योंकि उसका भी फिर ओनरशिप का इशू है कि जी प्रोविंस में एक पार्टी रूल कर रही है, कराची जो है एज एन अर्बन सेंटर उसको कोई और देख रहा है, फिर आप ऑब्वियसली मिलिट्री का अपना इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे फैक्टर्स है। हर कोई कहता है कि जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो किसी भी चीज को डील करने का। बेसिक कराची की बेसिक इश्यूज को उठा लें तो उसकी कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिकली सबसे सिग्निफिकेंट शहर है, उसकी ओनरशिप भी इसी तरह नहीं आपको नजर आती। तो वो फिर जो फ्लड्स को नहीं डील कर पाए, वो भी इशू था कि इनिशियली यही था कि हीट वेव भी शुरू में सिंध में ज्यादा हुई, तो ये सिंध गवर्नमेंट का मसला है, सिंध गवर्नमेंट नहीं मैनेज कर रही। फिर जब वो नॉर्थ वेस्ट में हिट किया, केपी में अब पीटीआई की गवर्नमेंट है पिछले 9 साल से, वहां पे जब वो हिट किया तो फिर बात अब उस प्रोविंस की हद तक चली गई। अब पंजाब में बात आई, सदर्न पंजाब में अब बात आ रही है, तो अब ये कि पंजाब गवर्नमेंट भी जो यो कर रही है, पहले एक पार्टी के पास थी, दूसरी पार्टी के पास थी। तो वही बात है कि किसने क्या करना है। अभी तो लोग इस पे ही निगरी पर कर पा रहे कि इसको सही किसने करना है, कैसे करना है, तो उसकी वो तो उसके बाद की बात। मतलब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये मेरे ये जो मतलब इस डायमेंशन में क्लैमिटी को समझना मेरे लिए एक बड़ी हैरतअंगेज बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जी बिकॉज द जी स्केल ऑफ क्लैमिटी इज सो ह्यूज। और आप जिस तरह से वो आप इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण ये अजीब से एक सिचुएशन बन रही है, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन लाइक मी और आउटसाइडर, क्योंकि हिंदुस्तान में भी ऐसी बातें बड़े यहाँ पे सैलाब आए, आप है, मैंने खुद कवर किए हैं, कश्मीर का सैलाब कवर किया है, इधर हमारे लद्दाख में भी आया था, बट देयर वाज अ वेरी यूनिफाइड एक्शन थ्रू आउट। मतलब इट, मैं आपको बताऊं, अगर 2014 में जब कश्मीर का आया था, इट वाज, मैं कवर करने गया था कुवैत, तो जैसे कोई वॉर जोन में एंटर हो गया था ना। मतलब आर्मी, जी आर्मी, एयरफोर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, देवर एक कंबाइंड थिएटर बना था। और लार्ज स्केल पर आपका तो बहुत 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स स्केल ज्यादा है। तो इफ देयर इज एनी यूनिफाइड कमांड जो इसको हैंडल कर रही है, या वो भी अभी तक मिसिंग है, कोई एक नोडल अथॉरिटी बनी है कि जो करे कि हाँ जी इसको समझना है, इसको लोगों को थोड़ी राहत देनी है, कोई यूनिफाइड कमांड इस्टेब्लिश हुई है अभी तक वहां पे? देखिए, इसमें इसके दो जवाब हैं, एक ऑन ग्राउंड है और एक थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो जो क्लाइमेट चेंज है या उससे जो भी आपका अफेक्टेड वो होता है, वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। डिफरेंट प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सारे इश्यूज आपने कैसे डील करने हैं। लेकिन तमाम सूबों का, अब रही बात है उनकी यूनिक चैलेंजेस है, टोपोग्राफिकली डिफरेंट है। सिंध और तरह के इश्यूज हैं सिंध में क्लाइमेट से रिलेटेड, केपी में और तरह के हैं, बलोचिस्तान में और तरह के हैं। लेकिन सब में आप देखें तो जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सारों में है, वो अंडर इक्विप्ड है। उनके पास बेसिक, आप जैसे पहले फ्लडिंग से पहले जब हीट वेव्स आई थी तो मुख्तलिफ जंगलात में आग लग गई थी, तो बेसिक जो आपको इक्विपमेंट चाहिए कि आपने अगर आग को बुझाने जाना है, तो उनके पास वो भी इक्विपमेंट नहीं थी कि हमने डील कैसे करना है। सैलाब तो फिर बहुत से बहुत बड़े स्केल की चीज है। तो ये थ्योरेटिकल जवाब ये कि डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उनके ये इश्यूज हैं, उन्होंने डील करना है, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसमें कोई वो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज उसको डील नहीं किया। एक्चुअल जवाब इसका ये कि पाकिस्तान में यूनिफाइंग जो कोई भी अथॉरिटी किसी भी चीज के बारे में जब आपने लेना होता है, तो वो एक ही अथॉरिटी है, वो है फौज। जब आपने जलजले का आपने जिक्र किया, जब पाकिस्तान में, साउथ एशिया पूरे में जब 2005 में वो अर्थक्वेक आया था, तो पाकिस्तान में बहुत डेवलप, तब ये वाले इश्यूज आपको नहीं नजर आए थे। आपको एक तरह क्लियर नजर आ रहा था कि एक जो है ना, हमने ये इशू है, हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है। आपको ये वाला पावर पे नहीं नजर आ रहा था। उसकी वजह क्या थी कि वो मुशर्रफ का दौर था, मार्शल लॉ था। अब मैं कोई मुशर्रफ के दौर की या आर्मी के उसकी मैं दिफा नहीं कर रहा, मैं मिलिट्री रूल को डिफेंड नहीं कर रहा। मसला ऐसा ये हो रहा है कि अब फ्लड या कोई भी जो डिजास्टर है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन देख के तो नहीं आता। पाकिस्तान Pakistan in general, we lack ownership of our country. Not just the politicians, not just we people as a whole lack ownership of our country. But this is probably the worst possible time when it comes to the lack of ownership. क्योंकि अब इस actual एक मतलब एक सामने एक वो सिचुएशन नजर आ रही है कि अच्छा थोड़ा डेमोक्रेटिक विंडो खोल दी गई है फौज की तरफ से कि अच्छा ये आप लोग आपस में लड़ के फैसला कर लें कि किसने क्या करना है। अब वो उस लड़ाई में सारे फंसे हुए हैं, उसमें चाहे कोई भी इशू आए उस टाइम पे फ्लड हिट कर दिया। तो यूनिफाइंग अथॉरिटी जो है वो भी यही है कि उनको अपने जो अप्रोप्रिएशन है फाइनेंशियल, उससे गर्ज है, उनको उससे गर्ज नहीं है फिलहाल कि मुल्क में किस तरह इस चीज को डील कर रहा है। और एक एक बार में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि जो पाकिस्तानी स्टेट है और जो गवर्नमेंट है, उसको और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको उनमें फर्क करना बहुत जरूरी है कि आपको बहुत सारी जो जो
एड वहां पे नजर आ रही है, रिलीफ एफर्ट्स नजर आ रहे हैं, वो लोकल लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अपने जिनको लोग ईबी ऑर्गेनाइजेशन, ईबी फाउंडेशन है, जैसे ऐसी और बहुत सारी फाउंडेशन है जिनको लोग बाहर से भी ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान से भी ट्रस्ट करते हैं, वो एफर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट, अभी की गवर्नमेंट, इससे पिछली गवर्नमेंट, इन्होंने इस मामले में ना कुछ किया है और ना इनकी कैपेबिलिटीज है कुछ करने। जी आपने वो हम उसके ऊपर आगे अगले प्रोग्राम के अगले मरहले पे आते हैं कि हाउ द एनजीओ जो वर्क कर रही हैं, जो और जो खुद जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा इस पे ऑन ग्राउंड पे आ रहे हैं। आपने एक इम्पोर्टेंट मसला जो उठाया था, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे जैसे वो जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, बड़ी कश्मकश चल रही है। एक कप्तान साहब अपनी एक सियासत चला रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं ही आलम बरदार हूँ इस मुल्क का, फौज जी अपनी तरफ से कर रही है। तो क्या इनको, पर फिर भी जो इक़्तिदार जो है वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट, जिसको नाम खूबसूरत से नाम दे सकते हैं, उसको हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे लेते हैं। तो जी। इक़्तिदार तो उसी के पास है। तो इवन इफ तक जो इस्टेब्लिशमेंट जो है कोर्ट एंड कोर्ट, क्या वो भी सीरियस इस वक्त ग्राउंड पे नहीं नजर आ रही है आपको? ये इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ तो हमें पाकिस्तानी चैनल्स पे इस्तेमाल करना पड़ता है, यहाँ तो हम फौज कह सकते हैं, हाँ पाकिस्तानी जी, फौज हाँ को। जी, जी, तो लेकिन लेकिन हाँ, अमूमन उनको इस्टेब्लिशमेंट के नाम से ही पुकारा जाता है। देखिए, इसमें आपने इमरान खान का जिक्र किया, बगैर मजाक, क्योंकि हम जाहिर बात है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हमारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन जब तक आप उसके पॉलिटिकल डायमेंशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि जी, बहुत पुरानी बात ही, पिछले हफ्ते की बात ही है कि जब अब इमरान खान साहब रैलीज कर रहे हैं बड़े अरसे से कि जी हमने इस गवर्नमेंट को निकाल बाहर करना है, मुझे वापस इलेक्शन जल्दी कराएं ताकि मैं वापस आऊं। अब जेलम में जब उनका जलसा था, तो लोगों ने उनको कहा, उस वक्त ये कैटास्ट्रोफी ना ग्लोबल स्केल पे चली गई थी, ग्लोबल मीडिया इसको हाईलाइट करी थी पिछले हफ्ते। जलसा उनको किया लोगों ने था। कहा कि जी ये आप, हाँ, उनको कहा कि जी आप क्या कर रहे हैं, ये हालात हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो उनका बयान आया कि जी जलसे तो होंगे, जंग में भी होंगे, सैलाब में भी होंगे, वो सारा। फिर उनका एक और स्टेटमेंट आया कि जी अब पैसे तो मैं नहीं खाते करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ इस्तेमाल होगी। हाँ। पीटीआई की एक और लीडर ने भी ये बात कल कल बीबीसी पे भी ये बात बोली है कि जी पैसे तो लोगों तक जा ही नहीं रहे। अब ये इससे ज्यादा आपको क्या पॉलिटिकल डिवीजन नजर आए कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे कह रहे हैं कि लोग जिनको आप पैसे भेज रहे हैं उन तक पैसे नहीं जा रहे, तो आप प्रैक्टिकली डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि वो पैसे भेजें। लेकिन ये मसला सिर्फ पीटीआई का नहीं है, इस सब जो गवर्नमेंट है उन पार्टीज का भी यही है कि अच्छा जी, एक दिन आप पिछले दिनों टेलीफोन हुआ जी, इमरान खान साहब ने उनको ठीक ठाक प्लेजेस मिली कि जी इतने 5 अरब जो है रुपए की हमको प्लेजेस हुई। अब उसको लेके अब यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया कि जी एक पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि जी अच्छा ये इतने हो गए तो नवाज शरीफ ने तो इतने कर सकता है, बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है, उन्होंने तो इतने मुल्कों से मिलकर इतने पैसे जमा कर लिए। इससे आपको जो, मतलब हम पॉलिटिशियन को डिवाइडेड कह रहे हैं, आप एवरेज पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर की ट्विटर फीड, फेसबुक फीड, आप व्हाट्सएप ग्रुप देख लें, उसमें भी यही बातें चल रही है कि कौन सा पॉलिटिशियन बजाय इसके कि आप इस सब को जरूरत क्या है इस चीज की। तो फौज इस वक्त, मेरा जाती ख्याल ये है कि वो इस वक्त जो ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है, और नॉर्मली जब भी ऐसे कोई क्राइसिस होता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो वो ऑन ग्राउंड पहुंचे होते हैं, आर्मी चीफ ये सब मुख्तलिफ जगह के दौरे कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बहुत देर कर दी, ये इनको बहुत पहले, वो अगेन लॉन्ग टर्म की हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में भी जो काम आपको बहुत पहले कर, इवैक्यूएशन बहुत पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुछ तो प्रैक्टिकली तो आपको सालों पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। ये सारे, मतलब सालों से वार्निंग्स आई हुई है कि ये वाला जो है, जो इस दरिया के ऊपर ये जो होटल बना हुआ है, या ये जो लोकेलिटी है जो बिल्कुल दरिया के किनारे है, ये वल्नरेबल है। ये वाले आपको सालों पहले वार्निंग्स आई हुई है, लेकिन आपने उसमें कुछ नहीं किया। अब यही है कि वो क्योंकि इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो अब उन तक उन बेसिक खाना, कपड़ा, ये सारा पहुंचाने की जिम्मेदारी है। उसमें आर्मी भी अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया गया। ये उनके एंड पे भी इशू है, ये सबके एंड पे। अ, जिस तरह अभी तो जो हमने सोशल मीडिया पे देखा कि अब तो बाजवा साहब भी गए थे, वो कह रहे थे कि लोगों को भी वो कह रहे थे कि एड करिए आप। फिर उन्होंने जैसे वो अपने होटल जो थे वनरेबल पोजीशंस पे जो थे, तो जो सोशल मीडिया पे चला, एक तो होटल था बिल्कुल बिल्कुल वो फ्लड में किस तरह से बह गया, मतलब एकदम से बह गया। तो उन्होंने कहा कि अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेंगे कि किसने इजाज़त दी, किसने दी। वो अलग की बात है, मतलब जानी नुकसान हुआ, लोग इफेक्टेड हुए, वो पहले इस वक्त को प्रायोरिटी है। बट एज ए आउटसाइडर और एज ए हिंदुस्तानी, मतलब आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज दैट पॉलिटिकल, नॉट ओनली द एस्टेब्लिशमेंट, इफ हम फौज या बाकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब दे आर डिवाइडेड ऑन दिस वेरी ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। ये मेरे लिए एक बड़ी, मैं इस चीज को बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। तो ये जो डिलेड एक्शन, अगर इफ देयर वुड नॉट हैव बीन अ डिलेड एक्शन,
if the army would have been the control, entirely in the control. So do you think the severity would have been lessened to a certain extent? देखिए इसमें जो नेचुरल कॉजेज हैं या चले वो टेक्निकली मैन मेड कॉजेज हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कॉजेज हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है, जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान में जो दुनिया का जो पोलर एरिया है उससे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में जो ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में 7,000 से ज्यादा, तो उन्होंने मेल्ट करना ही था, पानी ने इस वेलोसिटी के साथ आना ही था। जो वहां पे लोग थे उन्होंने इफेक्ट होना ही था। अब इस पे जल्दी अगर आप एक्ट कर लेते तो जो ह्यूमन लॉसेज हुई है, सिर्फ जो जाने गई हैं या इंजर्ड हुए हैं उनके अलावा भी आप अगर प्रॉपर पहले स्टार्ट कर देते कि इनको हमने इस एरिया को यहाँ से यहाँ लोकेट करना है, तो एक वो आपको जारी बातें बेहतर सोल्यूशन निकलना था। ये अब अगर 2-3 महीने पहले की मैं बात करूँ, लॉन्ग टर्म डैम्स की कमी, डिफॉरेस्टेशन गलत जगह पे हमने हमने की हुई, ये अब वो वाले वो हैं जिसमें आप ये शॉर्ट टर्म पिछले 2-3 महीने वाले स्टेप्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म पहले के सोचना चाहिए था कि यहाँ पे डैम बनना चाहिए था। यहाँ पे हमारे डैम्स भी पोलिटिसाइज हैं, हमारे डैम फंड भी पोलिटिसाइज हैं, हमारी अब पीटीआई की गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा जो वो बिलियन ट्री सुनामी स्टार्ट किया था, उसको ग्लोबल रिकग्निशन, हालांकि सुनामी के लफ्ज बड़ा खतरनाक है, लेकिन चले उन्होंने उनका पार्टी के साथ अटैच है तो उन्होंने उसको यूज किया, पेड़ लगाना, ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन, जी पेड़ जी, लगाना, हाँ जी जी ट्री प्लांटेशन का, जी। तो वो उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो एक अच्छी चीज थी। उसको भी पोलिटिसाइज कर दिया गया कि जी वो ये अच्छा है या उसमें करप्शन है एक दूसरे या नहीं है, ये सारा कुछ। तो एक तो वो वाले फैक्टर्स हैं, दूसरा तो आप इस डिजास्टर को इस साल 2022 में मिसाल के तौर पे आप ये नहीं अवॉइड कर सकते थे कि इतनी बारिश ना हो, आपके कंट्रोल में नहीं है, ये नहीं अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आप ये कर सकते थे कि ये वल्नरेबल एरियाज हैं, उनको पहले इवैक्यूएट किया जाए, वहां पे लोगों को एक अरेंजमेंट की गई हो कि यहाँ इन लोगों को फिलहाल टेम्पररी यहाँ करेंगे, फिर उनको कहाँ मूव करना है, ये चीजें आप पहले से कर सकते कुवर, आपसे एक कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि एक कंपैरिजन आ रहा है कि जब भुट्टो के टाइम में 72 के जो फ्लड्स थे वो कह रहे थे कि क्या उसकी सिवेरिटी भी ऐसी थी, मतलब आई डोंट नो, बट जो कुछ कुछ जो तबसरा निगार है वो कह रहे थे कि 72 के जो फ्लड्स थे उसकी हम किसी हद तक कुछ 2010 के फ्लड्स की भी बात कर रहे हैं, क्या उनकी सिवेरिटी भी ऐसी थी? पर मुझे खुद ऐसा लगता है कि 72 के साथ कहीं ना कहीं कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? क्या उस टाइम भी इतने ज्यादा इस स्केल पे फ्लड्स आए थे, और क्या उस टाइम गवर्नमेंट प्रोएक्टिव थी उस टाइम पे? जो इस वक्त तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ बैठ के तो मुझे प्रोएक्टिव गवर्नमेंट दिख नहीं रही। तो कुड यू प्लीज टेल अस उस 72 के जो हादसा हुआ था? हैं। 72 का जारी मैं आपको फर्स्ट हैंड तो नहीं बता सकता नहीं नहीं, कि 72 एग्जैक्टली जो क्या आपने ग्राउंड बोला कि रिएक्शन। जो, हाँ या हाँ हाँ, लेकिन मतलब जनरली मेरे ख्याल में सिवेरिटी वाइज अगर आप कहें, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सिवेरिटी वाइज, जो अगर आप जो बारिश कितनी गिरी थी और पानी का लेवल कितना ज्यादा हुआ था, ये सारा कुछ देखें तो कंपैरिजन बनता है। लेकिन 2010 और 2022 में जब आप कंपैरिजन करें तो इस साल बारिश भी ज्यादा हुई है, ओवरऑल डेवस्टेशन भी ज्यादा है, तो उसका कंपैरिजन जो है वो इस वक्त ज्यादा है। इस वक्त जो सिचुएशन 2010 से जो है वो ज्यादा डेवस्टेटिंग है। और उसमें फिर इसीलिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ, जैसे हमारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर जो है एड अब इमीडिएटली चाहिए होगी, ये सिर्फ वो है जो आपको बेसिक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं उन सारी चीजों के लिए चाहिए होगा। तो एटलीस्ट पिछले 50 साल में अगर हम मतलब 72 से बाद की बात करें तो इस टाइप की सिचुएशन, इस लेवल का फ्लड पाकिस्तान में नहीं आया। 2010 से ये ना सिर्फ ज्यादा है बल्कि मेरे ख्याल में काफी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड वाइज भी, और उसका जो ओवरऑल ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट है उसके हवाले से भी। और ये भी आप इसमें जो दूसरी बात आएगी कि इसका जो एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट होगा अब आगे जाके, वो भी बहुत ज्यादा होगा। कि अभी तो इमीडिएट है ना कि घर तबाह हो रहे हैं, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, जो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आ रहा है वो भी बहुत गुना ज्यादा होगा। ये अगले महीनों में कुछ हमें इसको फेस करना। जैसे कुवर, मतलब प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में हम आगे हैं, तो जिस तरह से आपने इसके मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट होगा, अफेक्ट होंगे, ये एक यूनि डायमेंशनल नहीं है मतलब। और दूसरी सबसे बात है कि इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ एक सियासी बवाल से गुजर रहा है, इट्स फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल्सो। आईएमएफ का बेल आउट का जो पैकेज आया है उस टाइम पे ये आना, तो अब इकोनॉमिक एड किस तरह से आएगी इसको उभरने के लिए? हालांकि हिंदू हमारे खुद के जो वजीर आजम मोदी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है अपना, क्या है, हमारे कुछ फॉरेन एक्टर्स जो हैं जो हॉलीवुड में बेस्ड है उन्होंने भी ट्वीट किया है, हिंदुस्तान हमदर्दी कर रहा है, पर खास अगर रिश्ते बेहतर होते तो इमदाद थोड़ी ज्यादा हो सकती। तो पाकिस्तान को कहाँ कहाँ से इमदाद आ रही है, कहाँ कहाँ से उसको इम्कान है, और जो ग्लोबली जो पाकिस्तानी है वो किस तरह से इमदाद दे रहे हैं?
जो ग्लोबली पाकिस्तानी उनकी तरफ से इमदाद बिल्कुल आ रही है। यूएन ने ऑलरेडी कॉल कर दिया है, अमेरिका ने $300 मिलियन के अनाउंस कर दिए। आपने हिंदुस्तान की बात की, मतलब में आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी उसमें बड़ी उसमें दिलचस्पी होगी कि अब एक छोटी सी मिसाल ये है कि पोलिटिसाइजेशन पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरे इशू की, पाकिस्तान और भारत की सब हम पाकिस्तान में ये बहस चल रही है कि बहस होनी नहीं चाहिए कि क्या हमें भारत का दरवाजा खोल देना चाहिए ट्रेड का, कि हम ताकि वहां उनके थ्रू, या ट्रेड का दरवाजा खोल देना चाहिए बल्कि कि क्या वहां से लोग जो काफी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि हम भारत के थ्रू आके आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो जरा एक जी जी आसान तरीका है, लैंड रूट से आ जाए वो। जी जी उस पर अभी बहस चल रही है कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इससे ज्यादा बड़ा अलमिया क्या हो कि जी इस वक्त तो आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए, आप मेरे और हम पूरा सब कॉन्टिनेंट, हमारे बहुत मसले रहे हैं और हमारे आपस की बहुत रंजिशें, बहुत लड़ाइयां, सब कुछ है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में तो मेरे ख्याल में ये किसी भी हुकूमत की तरफ ये सोचने वाली बात नहीं होगी, चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो। इस किस्म की सिचुएशन में तो सारों को इकट्ठे होना चाहिए बगैर इसके उसमें। अब उस पर भी हम वो जो पुरानी बात है कि जी अच्छा उसका सियासी इम्पैक्ट क्या होगा, अच्छा जी भारत के थ्रू आपने ट्रेड के दरवाजे खोल दिए, एनजीओ के दरवाजे खोल दिए, तो जब इलेक्शन आएंगे तो फिर ऑपोजिशन बोलेगी कि देखो जी इन्होंने तो भारत से मदद ली। आप इस वक्त भी ये बातें सोच रहे हो। तो आईएमएफ की आपने जिक्र किया, इस वक्त हमारी जो एक ऑपोजिशन पार्टी ने, पीटीआई ने, एक पूरा उनकी जी एक पूरा प्लान था कि हम आईएमएफ से, क्योंकि अगेन डिफरेंट गवर्नमेंट्स डिफरेंट प्रोविंसेस रूल कर रही हैं कि जी सारे आप इकोनॉमिक जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑन बोर्ड इकट्ठे ना हो, ताकि जो आईएमएफ की डील है वो जेपरडाइज हो जाए, ताकि जो करंट गवर्नमेंट है उसको क्रेडिट ना मिले। तो हमारे तो इस वक्त ये मसले चल रहे हैं। तो जब तक ये अब इस बेसिक चीज पर इकट्ठे नहीं होंगे कि भाई इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, फ्लड जो है वो पॉलिटिकल डिवाइड, रिलीजियस डिवाइड, एथनिक डिवाइड कुछ नहीं देख के आता, वो एक उस पर आता है, उस पर नहीं इकट्ठे हो पा रहे। ये एक अफसोसनाक बात क्या ये एक तो जो जाहिर सी बात है, जिस बहरान से पाकिस्तान गुजर रहा है, बड़े अफसोसनाक बात है। उसके ऊपर सबसे अफसोसनाक बात है कि सियासत किस लेवल पे जा सकते हैं जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट बिल्कुल को उनको दरकिनार कर दिया जाता है। बात लंबी है इसके ऊपर, इसके कई पहलू हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक वक्त का तकाजा था, पूरी तफसील में हम बात नहीं कर सके। फिर भी क्योंकि आप तो जानते हैं, हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अगर जैसे बलूचिस्तान तो ड्राई एरिया है, वहाँ पे जो एस्टिमेट है कि 400% ज़्यादा रेनफॉल हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी, हालांकि वहाँ पे तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ भी ये कहा जाता है कि 300% मोर रेनफॉल हुआ है। तो ये मतलब स्टैटिस्टिक्स देने का मकसद ये था, बताने का ये है कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कितनी ज़्यादा है। पर मडी पॉलिटिक्स के कारण इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा। कुंवर साहब, हम आपसे फिर आप बात करें कि we will try to understand more situation from you because as you are on the ground। और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट ये करनी थी, मैंने आपके टीवी चैनल्स पे भी और आपके जो देखा, आप हिंदुस्तान लफ्ज कहने से थोड़ा सा परहेज करते हैं। मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया, इसके ऊपर भी कभी हो सकता है पॉलिटिक्स, भारत ज्यादा कहते हैं, हिंदुस्तान लफ्ज मतलब डिक्शनरी से गुजर ही या हटा दिया गया, या उसके ऊपर गुरेज क्यों होता है, मुझे अभी तक इस बात की समझ भी नहीं आई इस बात की। तो अगर इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डाल देना चाहिए कि मतलब आपके टीवी चैनल में हिंदुस्तान क्यों नहीं आता। अगर वॉइस ऑफ अमेरिका देखे वो भी भारत कहता है, बीबीसी देखे वो भी भारत कहता है, मतलब हिंदुस्तान भी तो इस मुल्क का नाम है, उसके ऊपर गुरेज क्यों होता है। इसके लिए पूरा हमें अलग आधा घंटा चाहिए। अल्लाह जी मैं जी अपने जाती मैं तो उर्दू में जब भी कभी लिखा है कभी, तो मैं तो हिंदुस्तान का लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल जरूर करता हूँ। देखिए हम हमारे जो भाई अगेन बात किसी और तरफ चली जी जाएगी, जी जो जी जी हमारा जी एक तो पाकिस्तान में एंटी हिंदू सेंटिमेंट है और जिस लेवल पे वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, जी ये उसकी एक वजह बन सकती है। हम मतलब अगर आप कभी गौर कीजिएगा, आपने क्योंकि ये बात छेड़ी है, तो अगर कभी तनकीद करनी हो हिंदुस्तान के ऊपर तो अमूमन हिंदुस्तान का इस्तेमाल हिंदुस्तान होगा, जी अगर आपने वैसे भाईचारे की बात करनी हो तो भारत या इंडिया अमूमन इस्तेमाल होता है। जी ये इसके पीछे तो बात वो है, उसके लिए तो हमें बहुत एक तफसीली गुफ्तगू मजीद चाहिए। जी। हम आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे, वी विल कम बैक टू यू अगेन। कोवर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम, making our audience here understand the gravity of the situation and very sad aspect of also the body politics which is happening in the Pakistan. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर Thank you.